Namaskar students, welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I am going to discuss about standard form of a rational number, equivalent rational number, absolute value of a rational number, comparison and ordering of a rational number and rational number between two rational numbers. So a lot of topics we are going to discuss in this particular session. Before starting today's session, let me tell you that if you have not watched previous videos of rational number, then watch that video first. That will help you to understand the basics of rational number easily. So let's start today's session. Okay, first we are going to start with rational number in standard form. Basically, a rational number is said to be in standard form or simplest. These all are the name of standard form or lowest form. If its denominator is positive, so you have to make sure that denominator is positive and the numerator and denominator have no common factor other than 1. Means it is saying that कि कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म में तब होगा जब उनका फर्स्ट क्राइटेरिया डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए एंड सेकंड क्राइटेरिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा. नेक्स्ट, if we look for some example of rational number, that is -5/6, -15/26, 11/26, all of these rational number are in standard form. How did you find that? Because in all of these rational number, okay, let's start with first rational number, this one. Okay, you can see here denominator is positive, so first criteria satisfied. Second criteria says both numerator and denominator have no common factors other than 1. Now we can know that 5 and 6 does not come in same number table, means they do not have common factor other than 1. In second case, we can also see that denominator is positive and this -15 and 26 have no common factor. Similar thing applies in 11/26, because we see 26 is positive and 11 and 26 has no common factor. But if we talk about these rational number, that is 2/6, -15/24, 12/26, all of these numbers or rational numbers are in not standard form. How? Because we can divide this 2 in table of 2 by 1 time and this 6 in table of 2 in 3 times. Similarly, this can be further simplified in table of 3 in 5 times, and this is simplified for 8 times. Similarly, this can be simplified 6 times and 30 times. So you can see these have common factors other than 1. That's why these rational numbers are not in standard form. Okay, let me erase all these. Okay, now a rational number p by q is said to be in standard form if q is not equals to 0. Then and p and q are co-prime. And what are co-prime numbers? Numbers that does not have any common factor other than 1, then these numbers are known as co-prime numbers. So this definition is same for this. मीन्स इस डेफिनेशन में जो बोला गया है वो सेम इसके लिए. को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो यही यहाँ पे बोला गया है. सो नेक्स्ट वी विल लुक अबाउट we will discuss about method to reduce a rational form in simplest form. मतलब किस मेथड से हम लोग रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, या स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म. बोथ आर all these three terms are similar terms. Now what you have to do to reduce a rational number in its simplest form, first convert it a rational number with positive denominator. मतलब जब भी आपको रेशनल नंबर मिले, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको उसको पॉजिटिव करना है. सेकेंड थिंग, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF. और
Okay, let me show you some example. Okay, we have a rational number 14 upon minus 56. Now we can see here we have a denominator that is negative. So first condition we have to do, we have to make this denominator as positive denominator. So what you have to do, you have to shift this negative sign in numerator. Why we shifted this negative sign in numerator? Because we have multiplied with -1 in both numerator and denominator. ये माइनस न्यूमरेटर में कैसे चला गया? क्योंकि हम लोग ने इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया, जिस कारण से -56 एंड -1 मिलकर हो जाएगा 56 प्लस का, और 14 और -1 मल्टीप्लाई होने पे हो जाएंगे -14. ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. सेकंड कंडीशन व्हाट सेज? डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF. सो HCF of 14 and 56 is 14. When you find the HCF of 14 and 56, you will get 14 as the HCF. So what you have to do, you have to divide the numerator and denominator by 14. So after division we got -1 upon 14. Now this rational number is in standard form. So that's how you will reduce a rational number in its simplest form or standard form or lowest form. Okay, and you can do this by simply dividing numerator and denominator also. आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो. HCF निकालना कंपलसरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी, अगर आपको पता है कि किस नंबर के टेबल से ये डिवाइड हो सक जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. ओके, so the standard form of rational number 14 upon -56 is -1 upon 4, and we know how this came. Okay, next moving on, we have equivalent rational numbers. So we have already learnt about equivalent fractions. So what are equivalent rational number? If any two rational number can be reduced to the same standard form, then they are equivalent rational number. मीन्स ऐसे दो रेशनल नंबर अगर जब उनको हम लोग रिड्यूस करेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा. अभी आएगा कैसे? वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ अ गिवन रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग. दो मेथड है. वेट अ सेकेंड, ये दो मेथड है अपने पास, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं. अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कहाँ करना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में. और किससे करना है? बाय द सेम, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे. नॉन जीरो नंबर मीन्स जो नंबर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए. ओके, सो लेट मी शो यू हाउ डिड यू फाइंड equivalent rational number of a given number. So we have a rational number 33 upon 30, and we have to find equivalent rational number, two equivalent rational number as it is given in the question. Now first we are multiplying with 2. Now when you multiply with 2 in numerator and denominator both, you got 66 upon 60. Now this 66 upon 60 is a equivalent rational number of 33 upon 30. This is the multiplication method. By multiplication you will find equivalent rational number. Now we are going to do this by division method. Now this 33 and 30 can be divided by 3. So after division we got 11 upon 10. So these two are the two equivalent rational number of 33 upon 60. Okay, here hence two equivalent rational number of 33 upon 30 equals to 66 upon 60 and 11 upon 10. So that's how you will find equivalent rational number of a rational number. Now next topic we have absolute value of a rational number. Okay, what does absolute value of rational number says? Absolute value of a rational number is numerical value of that number. Means absolute value किसी भी नंबर का उसका ही वैल्यू है रिगार्डलेस ऑफ द साइन. मीन्स साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा. मतलब साइन की जरूरत ही नहीं लगानी है, हमें साइन लगाना ही नहीं, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख देना. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर p अपॉन q इज रिटन एज p अपॉन q इन mod. नाउ दिस symbol is known as mod. So whenever you have to find the absolute value of a rational number, first place that rational number in mod
and whenever you find the absolute value, we are getting its numerical value and we are removing the negative sign from that rational number. Okay, absolute value of a rational number, basically होता क्या है ये, absolute value of rational number is the distance of number that from zero on the number line regardless of the direction. मीन्स जीरो से कितना डिस्टेंस है इसका वो हम लोग बताते हैं. इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा. Next, we have to find the absolute value of 33 upon 30 and minus 11, 1 upon 4. Okay, so first absolute value of 33 upon 30, you have to place this rational number in mode. After placing in mode, we are getting 33 upon 30. Okay, I told you earlier, if you are placing a positive rational number in mode, you are getting a positive rational number, and here we have a negative rational number. Now when we place this negative rational number in mod, we are getting a positive rational number. मीन्स यहाँ पे हमें साइन से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें नेगेटिव साइन को हटा के सिर्फ पॉजिटिव साइन को लिखना है. ओके, नेक्स्ट, comparison and ordering of rational number. Okay, now we have some cases to compare two rational numbers. We will discuss these cases one by one. So first case we have same numerator and different denominator. मतलब अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, इस केस में क्या करेंगे? ओके, व्हेन न्यूमरेटर ऑफ टू रेशनल नंबर आर सेम, then compare their denominators. Remember, whenever you see two rational number in which numerator are same, then we have to compare their denominator. Rational number with a smaller denominator, जो भी रेशनल नंबर है जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर है, इज लार्जर रेशनल नंबर, वो लार्जर रेशनल नंबर होगा. कंपेयर किसके? रेशनल नंबर हैविंग लार्जर डिनोमिनेटर. मतलब लार्जर डिनोमिनेटर जिसका होगा वो स्मॉलर होगा और जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो लार्जर होगा. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे. ओके, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर स्मॉलर देन 7. अब 5 स्मॉलर है डिनोमिनेटर, जब स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा तो रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, रेशनल नंबर ये वाला ग्रेटर हो जाएगा. वैसे तो 5 इज स्मॉलर देन 7 बट 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7. जस्ट अपोजिट करना है हमें. जब भी न्यूमरेटर सेम हो तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को कंपेयर करिए. डिनोमिनेटर को कंपेयर करने के बाद चेक करिए, जो भी डिनोमिनेटर का, जिस भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रेशनल नंबर ग्रेटर होगा. ओके, मूविंग ऑन, we have second case, that is same denominator and different numerator. मतलब अगर अब जस्ट अपोजिट हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया और न्यूमरेटर यहाँ पे डिफरेंट हो गया. व्हाट यू हैव टू डू? व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ टू रेशनल नंबर आर सेम, देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स. अच्छा, वहां पे हम लोग डिनोमिनेटर को कंपेयर कर रहे थे, अब हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं. सो रेशनल नंबर विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज लार्जर रेशनल नंबर. जिस भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर लार्ज होगा वो रेशनल नंबर लार्जर होगा देन रेशनल नंबर हैविंग ए स्मॉलर न्यूमरेटर. अच्छा, अब देखो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें किसको कंपेयर करना है? -2 एंड -3 को. अब ये मत बोलना कि -3 ग्रेटर होगा. इंटीजर में ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो भी वैल्यू नेगेटिव पे बड़ी होगी वो छोटी होती है. ठीक है, तो -2 इज ग्रेटर देन -3. ये यहाँ पे ही सिर्फ कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को और यहाँ पे गलतियां करते हो आप लोग. ये गलती नहीं करनी है, आपको ये पता होना चाहिए इंटीजर में -2 इज ग्रेटर देन -3. सो यहाँ पे अब अपोजिट नहीं करना है, यहाँ जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर है वही रेशनल नंबर ग्रेटर हो जाएगा. तो 2/5, सॉरी नेगेटिव साइन में लगाना भूल गया, यहाँ -2/5 और यहाँ -3/5. So this -2/5 is greater than -3/5. Clear? Third case we have different denominator, different numerator. अब ये जस्ट अपोजिट हो गया. मतलब अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट केस देखा जहाँ पे न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर डिफरेंट था. सेकंड केस क्या देखा? जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर डिफरेंट था. अब क्या हो गया? दोनों ही अलग अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट न्यूमरेटर. क्या करेंगे इस केस में?
I think cross multiplication is the best method to compare two rational number in such cases. Okay, what you have to do, see, in both rational number we can see our denominator and numerators are different. So what you have to do, you have to do cross multiplication. So after cross multiplication क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एक के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से। तो -2 5 से मल्टीप्लाई होगा, -3 15 से। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिला, -10 -45। अब यहाँ पे ये फिर मत बोलना कि ये -10 कैसे ग्रेटर हो गया -45 से। अभी मैंने बताया जब भी इंटीजर की बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स की, तो जो छोटा वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा। ओके, सो इस वाले में अब डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं -2/15 इज ग्रेटर देन -3/5। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो पहला काम हमें ये करना है कि जो भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सपोज अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो आपको अगले स्टेप में इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे लाना होता। सिंपल सा, जो पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर? ओके, एक मेथड और है कंपैरिजन करने के लिए, आप उसका यूज करके भी कर सकते हो। क्या है वो? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके। कैसे करेंगे? वन मोर वे टू कंपेयर रेशनल नंबर इज बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एंड देन कंपेयर देयर न्यूमरेटर। ओके, तो दो रेशनल नंबर कौन से? 3/4 2/3। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 4 का। तो क्या है एलसीएम? 12। अब हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को इस 12 के बराबर करना है। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर 4 है, अब ये 12 के बराबर कैसे होगा? 3 से मल्टीप्लाई करके। जब 3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिला? 9/12। नाउ इन दिस रेशनल नंबर वी हैव 3 as denominator and we have to make denominator as 12. So what you have to do, you have to multiply this 3 with 4 and same this 4 is multiplied with numerator. So after multiplication we got 8/12. Now we can see our denominators are equal. So in case when our denominators are equal, then we have to compare our numerator. So after comparison we can see 9 is greater than 8, that's why 3/4 is greater than 2/3. So यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3/4 is greater than 2/3. Next topic is ascending order of a rational number. I am explaining only ascending order of a rational number. If you know how to do ascending order of a rational number, then you can find out the descending order of rational number easily. Okay, क्या करना है? सबसे पहले ये कुछ रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर्स आर गिवन हियर, -2/3, 5/9, 5/6, 13/-18. First you have to convert all the rational number with positive denominator. So this has already positive denominator, this 5/9 has already positive denominator. Similarly 5/6 has already positive denominator. But in case of 13/-18 we do not have positive integer, positive denominator. So what you have to do, you have to shift this negative sign in the numerator. So we have shifted this negative sign in numerator. Okay, next we have to find the LCM of denominator, means 3, 9, 6 and 18, that is LCM is 18. Now convert all the rational number into equivalent rational number in such a way so that they have common denominator of 18. Okay, let me show you how will you do that. So we have -2/3. अब -2/3 है, हमारा LCM क्या है? 18। मतलब हमें 18 बनाना है सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को। तो 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सेम इस वाले केस में 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हम लोग न्यूमरेटर में इस प्रोसेस को रिपीट कर दिए। अब यहाँ 6 को 18 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सेम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इस वाले में तो ऑलरेडी 18 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट -12/18, 10/18, 15/18, -13/18. नाउ यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने बताया नेगेटिव में जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है
वो वैल्यू छोटी होती है। तो -13/18 पहले आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर हम लोग अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू इज -13/18, देन -12/18, then we have 10/18, then we have 15/18. Now we have to write the equivalent rational number of this also. So -13/18 is same, wait a second, okay, देखो ये जो -13/18 है ये तो पहले से क्वेश्चन में था, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। देन वी हैव -12/18. Now this -12/18 has came from -2/3, so we have to write -2/3. Same, next we have 10/18, and this 10/18 is came from 5/9, so you have to write 5/9, and similarly for 15/18 we have to write 5/6. So that's how you will arrange rational numbers in ascending order. If we have to arrange these rational numbers in descending order, so what we have to do in descending order, we have to arrange numbers from greater to smaller. So we have to write greater rational number first, then we have to write the second greater number, and then we arrange. And for descending order we will use this symbol. Okay, now we have to find rational number between two rational numbers. Okay, we can find as many as rational numbers as possible between two given different rational number. Okay, we can find unlimited number of, or maximum we can find infinite number of rational number between two rational number. मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने एक नंबर दिया मान लो नेचुरल नंबर 4 और 6। अब मैंने बोला इस 4 और 6 के बीच में कितने यहाँ पे नेचुरल नंबर हैं, तो सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसी 4 और 5 के बीच में बोलूं कितने रेशनल नंबर हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेशनल नंबर है, ये यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। सेम अगर 5 और 6 की बात करें तब भी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होगा। ओके, अब यहाँ पे इसको जब हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ केसेज है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल एंड न्यूमरेटर्स हैव अ गैप, मीन्स जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और न्यूमरेटर में एक गैप हो। कैसे, एग्जांपल देखो, एक रेशनल नंबर 1/7, दूसरा है 4/7, और कितने रेशनल नंबर निकालने, 2। सो व्हेन वी राइट दीज रेशनल नंबर in continuous pattern we will get 1/7, 2/7, 3/7 and 4/7. Now we can easily see that there are two rational number already between these two rational number, so we will write these two rational number as it. So two rational number between 1/7 and 4/7 is 2/7 and 3/7. Okay, जब भी आपको दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग उसके न्यूमरेटर के गैप को चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो तब। अगर गैप जो परफेक्ट है, हमें जितना चाहिए उतना है, तो हम लोग डायरेक्ट उस वैल्यू को लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट, इफ वी हैव डिनोमिनेटर्स आर इक्वल एंड न्यूमरेटर हैव नो गैप। अब इस वाले केस में क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल तो है लेकिन न्यूमरेटर के बीच में कोई भी गैप नहीं है। एग्जाम्पल देखो क्या है, 1/7 एंड 2/7। अब देख रहे हो 1 के बाद तो डायरेक्ट 2 आ जाता है, कोई गैप ही नहीं है इसके बीच में। क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर। सो सिंस वी नीड 3 रेशनल नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3 + 1। तो जब भी हमें जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे हम लोग उसमें एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ हमें देख रहे हैं 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम लोगों ने 3 में 1 प्लस कर दिया तो क्या मिला हमें, 4। अब 4 से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दो रेशनल नंबर दे रखे हैं उन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 1/7 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सेम 2/7 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 से। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 4/28 एंड हियर वी गॉट 8/28। नाउ we have 3 rational number, exactly 3 rational number between these two rational number, that is
5/28, 6/28 and 7/28. रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी टू मल्टीप्लाई विथ 4। आपको ये कोई नेसेसरी नहीं कि आप 4 से ही मल्टीप्लाई करो, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कर लो, किसी भी नंबर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो, जो मैंने ये मेथड बताया कि जितने भी निकालने उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई करोगे, तो हम लोगों को एग्जैक्टली उतने रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो रेशनल नंबर है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया तो ये 3/14 और इसको डिवाइड करेंगे 7 के टेबल में ये 1 टाइम पे और ये 4 टाइम पे। ओके, 5/28 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो इस तरीके से तीन रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 5/28, 3/14 एंड 1/4। रिमेंबर यू हैव टू राइट रेशनल नंबर ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। जब डिनोमिनेटर ही इक्वल नहीं हो उस केस में क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो केस देखा है वहां पे हर बार डिनोमिनेटर इक्वल था, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। सो सिंस डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, सो फर्स्ट इक्वल द डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग देम इनटू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये तो हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। कैसे, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 6। अब 6 बनाना है हमें डिनोमिनेटर को दोनों ही जगह पे, तो हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 होगा, और यहाँ पे 3 है इस कारण 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 होगा। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिला, 3/6, 4/6। नाउ we can see there is no gap between numerator although our denominator are same। हम लोग के डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन क्या न्यूमरेटर में कोई गैप है, नहीं है ना। 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आएगा। इस केस में क्या करेंगे, सिंस देयर इज नो गैप इन न्यूमरेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई द रेशनल number by 3 plus 1 equals to 4। as I told you earlier, whatever rational number you have to find or whatever number find, just simply add 1 in that number and multiply with that number in numerator and denominator both। तो यहाँ हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों रेशनल नंबर में, 3/6 को भी 4 से और 4/6 को भी 4 से। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिला यहाँ पे 12/14 और यहाँ पे 16/24। अब तीन रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 13/24, 14/24 एंड 15/24। इसको आप लिखोगे ना डायरेक्ट तो 12/24 के बाद क्या आता है 13/24, फिर 13 के बाद क्या आएगा 14 आएगा, और 14 के बाद 15 ही तो आएगा, और फिर 16/24। अब अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे, 2 की टेबल में ये 7 टाइम पे और 2 की टेबल में ये 12 टाइम पे। ओके, एंड 3 की टेबल में ये 5 टाइम पे और 3 की टेबल में ये 8 टाइम पे। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने लिख दिया 13/24, 7/12 एंड 5/8। तो इस तरीके से करोगे आप। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 और 4 जो है ये क्या है, ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ साथ ये रेशनल नंबर भी है। अब इस केस में कैसे करें, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1। ये तो हमें पता है कि 1 हमेशा हिडन होता है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट वी हैव 4, सो वी कैन राइट 4 एज 4/1। नाउ वी कैन सी आवर डिनोमिनेटर आर इक्वल बट देयर इज नो गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स। अब यहाँ पे न्यूमरेटर के बीच में कोई भी गैप दिख रहा है क्या, आपको नहीं दिख रहा है ना। 3 के बाद तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंस वी नीड 6 रेशनल नंबर, सो वी विल राइट 3 and 4 as rational number with denominator 6 plus 1 equals to 7। मतलब हम लोग 6 plus 1 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 3/1 है, अब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह, यहाँ 4/1 है, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आया 21/7 एंड 28/7। देखो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, 7 की टेबल में ये 3 टाइम पे जाएगा और ये 7 की टेबल में 4 टाइम पे जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वापस वही का वही रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच के रेशनल नंबर 21/7 के बाद कौन आएगा 22/7,
then 23 upon 7, then 24, 25, 26, 27 upon 7 and 27 28 upon 7 is our लास्ट लिमिट। तो हमें 6 ही रेशनल नंबर चाहिए थे और ये हम लोग देख रहे हैं कि 6 रेशनल नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर को फाइंड आउट करोगे दो रेशनल नंबर के बीच में से। अब एक टॉपिक और बच गया, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करूंगा। एक मेथड और है to find rational number between two rational number. So regarding this session, if you have any doubt, then write in the comment box. I will try to answer, or I will try to clear your all your doubts. And thank you for watching this video. If you like the video, then subscribe, like and share, and press the bell icon to get the latest notification from this channel. Okay, thank you.